सुनिएगा। Why we are here, we all know. This is a special occasion, Anesthesia Alumni Meet 2019. And is it special? Yes, because it is lifetime event. I am 200% sure that Dr. Mohit has given us the opportunity to assemble here. Otherwise इसके बाद इतनी बड़ी मीट नहीं होगी और इससे पहले कभी नहीं होगी। ये तो आप सब एग्री करेंगे। तो every batch has its own peculiarities. एक साल से WhatsApp ग्रुप बना हुआ है, हम लोग आपस में डिस्कशंस करते रहते हैं। तो there are good and happy elated feelings. सब खुश आज मिले हैं। It is one of the landmarks and it's a lifetime event. Minds have changed a lot over the years. इतने सालों से हमारा सबका दिमाग, कोई कहीं डायरेक्टर है, कोई कहीं कुछ है. But when we entered here, we are all one. We know this, that we all have the old memories and many old stories to share. How I am here, MBBS profs, बड़ी मुश्किल से पार हुए यहाँ. Then entrance clear किया, फिर then MD anesthesia, job interviews, and then now I reached here today. So my introduction, I am at the Department of Anesthesia and Intensive Care at Chandigarh. Thanks to all the teachers. Actually, I am standing here only because I want to thank all our teachers who have given us this knowledge. So God is great, yes, always great. We are also thankful to God first that we are obliged with these teachers, organizers, people like Shena, and then all these people who are working here. They are doing a wonderful job for the last 1 year. Professor and head Dr. Syed Mohid Ahmed Khan. इनका हम आज में बात करूँगा मैं. Last slide is this. So all the colleagues who helped me or not helped, they are to be thanked. Then 4 ड्यूटी बाकी है अभी. 4 ड्यूटी बाकी है. Technical staff and nurses in the operation theatre, those are to be given the due. Then my wife and children, they have also come. They will join in lunch. Special thanks to Dr. Harsh Sapra. He is not here, I think. So he had, मुझे उसने एक अच्छा सा glorified सा view दिया. When I was doing pharmacology, pushed me कि anesthesia ही ले ले. इससे अच्छी कोई ब्रांच नहीं है, कोई काम वाम नहीं है ज़्यादा. और आराम से घुस और एंजॉय करो सारा दिन. I took this because of this person. And then Professor Bano, she is my great teacher and real gem. I think all will agree here. So this is another gem. Gem तो सारे ही हैं, पर मैं जरा ऊपर से शुरू कर रहा हूँ. Professor Rashid Khan, I can't say anything about this man. He is the person from different world. Taught me how to write my papers and everything. I owe everything to him, which I have excelled in my life. I am thankful to sir. Then special thanks to Professor Abdul Qadir for building my medical legal aspects. जितने भी मेडिकल लीगल एस्पेक्ट होते थे सारी सिखाते थे. ये आप कर देवे, ये ना कर देवे. तो हम लोगों ने आज तक ये चीज दिमाग में बैठी हुई है कि इसको करना है, इसको नहीं करना है. डॉक्टर मुबस्सिर मियाँ रीजनल एनेस्थीसिया के मास्टर थे. 4 मिलीग्राम दे दो और टेबल को सीधा कर दो. एंड ये और कहीं नहीं सिखाया जाता है. ये माइंडेड. Our batchmates who made me balanced, brave and disciplined anesthesiologist, विनय सभी भाई ने ऐसा एनेस्थीसिया सिखाया कि आज तक मैं अगर आप स्पाइनल लगा लें तो उसको अगर पैर उठा दें तो ब्रेस्ट एब्सेस भी करा सकते हैं. But his knowledge and his bravery, I am saluting still now. Then we have Mishra ji with us. He is there. So in मिश्रा जी ने अपना बहुत अच्छे से हमें जीवन के कई रूप सिखाए. हमें जल्दी उम्र में जल्दी बूढ़ा बनाया. And then I became the anesthesiologist. Dr. Radha Rani, she is not here today. First emergency duty में intubation सिखाया. Dr. Naseem, first IV cannula लगाया. I still remember these landmarks. Dr. Rashid साहब ने पहला मेरा पेपर लिखवाया. 5 बार लिखवाया सर ने मुझे. मैं आज भी कहता हूँ 5 बार प्रिंट पॉइंट से पॉइंट करा के लाता था. प्रिंट कराया, फाड़ देते थे. जाके क्या बेवकूफ करके आया तू. उसके बाद जब 6ठी बार बैठता था, तू छोड़ ये सब चीजें, आजा मेरे पास बैठ जा. सारे डिक्टेट करा देते थे. तो मैं सोचता था जब सारे डिक्टेट कराना तो 5 बार क्यों पढ़वाया. बट इट वॉज द रियल टीचिंग. आई स्टिल owe to him everything. Because that was the only thing which I teach now to my students. But students, if one student keeps it up, then they will also learn like this. I am 100% sure. Then we have a registrar battalion. You can see that.
डॉक्टर राधा रानी, डॉक्टर चेतन तो ऐसे थे जैसे कि यहाँ के हमारे पुराने ही लोग हैं, पहले डीए किया फिर एमडी किया, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पता नहीं कब से इसी डिपार्टमेंट में बैठे हैं। डॉक्टर अबरार अहमद, डॉक्टर परवेज, तो काफी सारे, डॉक्टर अमित सिंगल, डॉक्टर रंजीत, ऑल आर हियर टुडे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट देम टुडे। नसीम भाई एंड इसाक भाई, आई थिंक यू ऑल रिमेंबर, जो हमारे टेक्निकल स्टाफ होते थे, तो जब भी बुलाइए दे ऑलवेज हेल्प अस एट एवरी टाइम। अंसार भाई अब तो नहीं है शायद, पर उनकी जो टी और पार्ले जी होता था वही हमारा ब्रेकफास्ट था लाइफ का, वो मेरा नहीं था। देन विक्रांत जो मेरे लॉन्ड्री और वो सब बहुत ध्यान रखते थे मेरा। तो फिर जेडीओ मैच जाना, जेडीओ मैच जाके आपने टीटी खेलना, डॉक्टर गाजी के साथ खेलते थे, और उसके बाद हम लोग अपना टीटी खेल के अपना दिन निकालना और खाना खाना वहां पर। जिताना होता था कोई नेक्स्ट एचओडी यही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, व्हाई आई कंसीडर माई सेल्फ स्पेशल इन एएमयू, दैट इज समथिंग डिफरेंट। You all know सिंह इज किंग, इतने सारे लोगों में एक ही सिंह है, और इतने सालों तक। आज तो मैं जितनी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ वहाँ भी एक ही होता है। ये बशीर साहब को भी ऐड कर दो जो समोसे लेकर आते थे बाजार से। हाँ, वो बशीर साहब के समोसे, मुझे बशीर साहब का नाम याद नहीं था, बट यस वी हैव टू ऐड दैट। तो एमबीबीएस स्टूडेंट था मैं यहाँ का। आई स्पेंट 1991 से 2002 हियर, एंड फिर इंटर्न बना, फिर फार्माकोलॉजी 1 साल किया, फिर पीजी एनेस्थीसिया किया, गेस्ट फैकल्टी की तरह बुलाया मुझे। डॉक्टर बानो ने मुझे बोर्ड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल एथिक्स की तरह बुलाया। देन आई कंडक्टेड मेनी वर्कशॉप्स हियर, देन एज अ पीजी एग्जामिनर आल्सो। सो दिस इज व्हाई आई कंसीडर माई सेल्फ एज स्पेशल हियर। एंड एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, ज्यादा कुछ नहीं था, ऐसा था किसी तरह पास हो जाऊं निकल जाऊं। तो हादी हसन हॉल में रहना, नए नए आए बाहर से, दिल्ली से मैं आया था। दिल्ली और यहाँ का कल्चर ही डिफरेंट था। कोई यहाँ लीजिए दीजिए, वहाँ दो लो, ये दे दो ये ले लो। अब कल्चर वाज एंटायरली डिफरेंट एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अडैप्ट इन दिस कल्चर। तो मुझे डीएस टेबल पे बोलते थे कि आप बताइए डॉक्टर इजाज अहमद एनाटमी के, आप गांव से आए क्या? मैं सोचूं पता नहीं पीछे वाले को कह रहे हैं शायद। तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा कि नहीं मैं तो दिल्ली से हूँ। फिर क्या 2 लो लगा रखा है। देन आई रियलाइज कि अच्छा ये भी कुछ गलती कर दी है मैंने। तो देन आई अडैप्टेड माई सेल्फ विद दीजिए लीजिए, ये सब करते करते जब दिल्ली पहुंचा वापस, आई वर्कड 8 years in UCMS, तो वहां भी यही, वहां अब 2 लो में आ गया। तो द कल्चर अगेन चेंज। तो दिस वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन वी फेस व्हेन वी गो टू द हॉस्टल्स। Then food of Hadi Hasan all very difficult to eat. इतने साल दाल इसलिए जल्दी पी लेते थे कि भूख ना लगे और ऊपर जाके कुछ अपने कमरे में खाएंगे, तो खाना ऐसा होता था। Then anatomy, physiology, biochemistry, एक ये एपिसोड ऐसा होता था कि 100 में एक सरदार होता था हर बैच में, जैसे एमबीबीएस में। तो 100 में मैं जैसे ही बातचीत पीछे शुरू हुई तो मैं पीछे टीचर यूँ देखता था, सरदार जी यू गेट लॉस्ट। वही एक प्रोमिनेंट आदमी है जो दिखेगा। तो मुझे बाहर, अब मैंने कहा चलो आज इसमें बाहर, सबने बाहर निकाला एक बार, बट आई एंजॉयड दैट कि उन्हीं टीचर ने बाद में इतना प्यार दिया कि आई एलुमनाई मीट हमारी हुई लास्ट 2016 में, एंड एवरीबॉडी वाज डॉक्टर, वी हैव डॉक्टर इमरान घनी एंड ही वाज आवर टीचर, ग्रेट टीचर एट दैट टाइम। तो हम लोगों ने इसे इतना सीखा। देन इंटर्नशिप, अब यूफोरिक हो गए हैं, डॉक्टर तो बनने जा रहे हैं, क्योंकि घर में तो कोई डॉक्टर था नहीं पहले। तो देन आई डिड इंटर्नशिप फुल हार्टेडली, बहुत अच्छे से देखना है मरीज। 200 पेशेंट्स की, 150 पेशेंट की तो मेडिसिन की ओपीडी मैं ही देखता था। एक रजिस्ट्रार मुझे कहता था तुम सेपरेट टेबल लेके शुरू हो जाओ, मेरा काम आधा हो जाएगा। और मुझे लगा वो बिगेस्ट फुलिशनेस हुई है, क्योंकि एमडी पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिला एंट्रेंस के लिए। देन आज भी ये डिलेमा है कि इंटर्नशिप करूं या पीजी करूं, ये किसको क्या मैं सिखाऊं अपने। अब नाउ आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द मेडिकल स्कूल, तो आई एम स्टिल इन डिलेमा कि मुझे उनको क्या सिखाना चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए या पीजी सीखनी चाहिए, उसकी तैयारी करो। तो दिस आई हैव टू थिंक नाउ। देन पोस्ट ग्रेजुएट एनेस्थीसिया, जिसके लिए आज हम आए हैं। 3 years मोस्ट प्रोडक्टिव। देन आई गॉट मैरिड, माय वाइफ इज हियर, वाज हियर ओनली टुडे, अभी आएंगी। देन आई एंजॉयड माय पीजी ईयर्स बेस्ट इन द होल ऑफ माय लाइफ। तो जादू की दवाएं थी, अंदर घुसे, कोई आ रहा है नॉर्थपुरन बनाया, नॉर्थ उधर से कुछ 4 ml लिया, उधर ठूस दिया, उधर से 4 मरीज को 1:1 बन गया। अभी आज तक समझ नहीं आया था कि इतनी जल्दी
हफ्ता 10 दिन तो इसी में निकल गया कि क्या डाल रहे हैं और कितना डाल रहे हैं और कैसे बन गई है। तो ये दिस वाज द फैक्ट्स। खायो बनानी थी, इसकी कंसंट्रेशन ये समझ नहीं आती थी कैसे बन गई एकदम से। इनिशियल जो 1 महीना था, क्योंकि किसी ने एमबीबीएस में कभी पढ़ाया ही नहीं था कि एनेस्थीसिया चीज क्या है, 0% टीचिंग होती थी। एक बार डॉक्टर मोहित की खास थी, इंटर्नशिप में मैं एनेस्थीसिया की पोस्टिंग के लिए गया, तो डॉक्टर मोहित ने कहा तुम एनेस्थीसिया के लिए आए हो? मैंने कहा ठीक है, 15 दिन की अटेंडेंस लो, जाओ। आई वाज ग्रेटफुल टू हिम, 15 दिन किसी ने तो छोड़ा। तो ड्यूटीज कॉन्फ्रेंसेस मैंने खूब की with grace of Dr. Rashid and Dr. Banu and all my teachers. I presented at 13 papers in my PG and then I published 7 papers during my post graduation. तो मुझे एक किताब दिया गया कागज का फूल, तो ये इन फेयरवेल में हमें मिलता था। So making guide was another big issue in this department. ये अंदर के राज है जो मैं आज बोल रहा हूँ। गाइड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइड सिलेक्शन कैसे होता था? फिक्स क्राइटेरिया, जिससे बात कर लो चुपचाप वही गाइड है। ये एक खास चीज थी जब पूछते थे। अब डॉक्टर राशिद वाज द मोस्ट पॉपुलर गाइड, मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा बिडिंग इन्हीं की लगती थी हमारे बैच से, मैं बता सकता हूँ। और डॉक्टर राशिद वाज क्लेवर एट दैट टाइम। वो देखते रहते थे इनमें से कौन सा ऐसा हीरा है जिसको मुझे पकड़ना है। तो उसके बाद डॉक्टर मसूद, अच्छा ही वाज सेकंड पॉपुलर। व्हाई? कैन एनीबॉडी टेल? बिकॉज इनका जो गाइड कैंडिडेट होता था वो डॉक्टर राशिद की ओटी में काम करता था। इनडायरेक्टली ही वाज द सेकंड बिडर। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ये दो तो हमारे आदमी आए। तो मैं थोड़ा थॉटफुल हो गया, मैंने कहा इतनी अनसर्टेनिटी में तो 1 साल नहीं बीतेगा। तो मैं थोड़ा सा मैडम को मैंने जब देखा तो मुझे बताया कि मैडम जो है इनको गाइड बनाओ। मुझे लगा एचओडी भी है, अच्छी है, तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। बट आई एम स्टिल, वो मैंने जाके मैडम से बात की, मैडम कहती ठीक है आप बन जाइए, पर मेरे पास 2 कैंडिडेट हैं इस साल, आपको थीसिस जल्दी लिखनी पड़ेगी। दिस वाज द वर्डिंग मैडम टोल्ड मी। और आज मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने उस टाइम एक सबसे भला का काम किया जो मैंने मैडम को अपना गाइड बना लिया था। अब मैडम बानो के साथ मैं आज भी उतना ही ताल्लुकात है मेरा। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड शी वाज मोस्ट अफेक्शनेट एंड ब्रिलियंट गाइड। और मुझे लगा कि अब मेरा दिन जो है सुधर गया आराम से। शी इज वेरी गुड एनेस्थेटिस्ट ऑल्सो, इन्होंने मुझे बहुत सिखाया। 1 साल की पोस्टिंग पूरी लगती थी। एंड उसके बाद डॉक्टर मसूद, हम जानते ही हैं, सिंपल, अफेक्शनेट, नाइस ह्यूमन बीइंग। दुनिया में जिसके पास स्पाइनल ना लगे कहीं भी, तो सर को बुलाओ, ये वो कहीं ना कहीं से नीडल डाल उनके स्पाइनल लगा ही रहते थे। ये बात पक्का है, यस और नो? तो हमने तो ये एक्सपीरियंस किया। डॉक्टर मसूद, एक बार तो डॉक्टर राशिद ने ही बुलाया था, मुझे याद है। तो तब मुझे लगा कि इस बंदा में कुछ खास है, वो हमें सीखना चाहिए सर के साथ। तो सर ने वो स्पाइनल लगाया था। सर ने अभी दाढ़ी ऐसे कर ली है कुछ। सर आई एम थैंकफुल टू यू। तो डॉक्टर कादिर को मैं कभी नहीं बोल सकता, बिकॉज उनके जैसा आदमी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अब तो नहीं है, बट मैं आई स्टिल फील दैट अगर आप उनकी ट्यूनिंग करनी सबसे मुश्किल है, जैसे उस चैनल के साथ ट्यूनिंग हो जाए आपकी, तो वो ट्यूनिंग सबसे डिफिकल्ट थी। डॉक्टर अनिल, ये डॉक्टर अमित थे, डॉक्टर सभी हमारे बैच में था। तो इनके साथ पर मेरी ट्यूनिंग इतनी फाइन हुई कि वो सास बहू की तरह हम चलते रहे। बट ही वॉज वेरी काइंड एंड वेरी काइंड टू मी। और डॉक्टर अमित सिंगल को शायद पता नहीं है, जब इनका फोन नहीं जाता था तो दूसरा फोन मेरा आता था सर के पास, कि टीचर्स डे पे भी आता था, और सारी उम्र उनको मैंने फोन किया। और वो कहते थे आज हम वेट कर रहे हैं कि अमित सिंगल का फोन आएगा, फिर उसके बाद आपका फोन आएगा, कि बेटे मुझे जानते हैं इस चीज को। तो ये चीज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि वो हमेशा हमें याद रखते थे। राशिद सर ऑलवेज अ पिलर ऑफ द डिपार्टमेंट। हमने जो देखा इतने साल से, I have yet to find a teacher like him till date, although I have come across many teachers in my life. तो क्योंकि मेरा हमेशा एकेडमिक साइड पे ही रहा है, बट अभी तक इनके जैसा इंसान और टीचर मुझे मिला नहीं है। आई एम स्टिल टू फाइंड हिम। वन इन ऑल, एक रूप में सारा कुछ मिल जाएगा आपको। कार्डियक भी सिखा देंगे, आईसीयू PLV 102 पे जो इन्होंने हमें आईसीयू सिखाया वो किसी ने नहीं सिखाया। आज जितने मर्जी अच्छे वेंटिलेटर हो जाए, एंड थैंक्स टू हिम आई डू नॉट हैव एनी वर्ड इन द डिक्शनरी दैट राइटली डिपिक्ट्स हिज पर्सनैलिटी। इफ्तार पार्टी बहुत अच्छी, आज इतनी अच्छी इफ्तार पार्टी हमने खाई है मिलजुल के, एंड आई एम थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट। बर्थडे पार्टीज, फ्रेशर पार्टीज, फेयरवेल पार्टीज, ये सब हमने खूब एंजॉय किया इस डिपार्टमेंट में। फर्स्ट फाइनल और फर्स्ट इंटोवेशन पार्टी एक अलग कल्चर था।
जिसने पहला कल्चर वो लगाया स्पाइनल, उसकी पार्टी, इमरजेंसी में अलग पार्टी, उधर अलग पार्टी। तो ये पता नहीं आज तक चलता है कि नहीं चलता है। बट समोसा कल्चर भी यही हमने खाया सबसे पहले। देन टी अंसार की, और टीचिंग एंड ट्रेनिंग 8 बजे की जो ट्रेनिंग है, मैंने इतने इंस्टीट्यूट देख लिए, वो कहीं नहीं है, और इससे अच्छी टीचिंग कहीं नहीं होती है। ये मैंने मतलब ये डिपार्टमेंट में जो टीचर हमें पढ़ाते थे 8 बजे, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। 3 gems with whom you can enjoy at any time। अगर आप देखेंगे हमाद भाई के पास बैठिए तो आप कभी बोर नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। हमाद भाई अब प्रोफेसर हो गए, एमिनेंट पेन फिजिशियन है। देन वी हैव डॉक्टर मोहित, इनके पास भी बैठ जाओ, आपको कोई ना कोई नई चीज मिलेगी, कोई ना कोई हंसी हो जाए, आपको ही मजा आता रहेगा कि हम और बैठे रहे इनके पास, सर के पास और सुनते रहे। एंड वन पर्सन हु इज एब्सेंट हियर, डॉक्टर दानेश, इनके पास भी अगर आप बैठोगे, ये अब यूके में है बट ही कुडंट कम समहाउ, तो इनके पास बैठने पे भी आप कभी बोर नहीं होते। एंड ही हैज सो मेनी वर्सेटाइल systems in his photography and all the videography and so many nice things. Ab last is our time youngest male consultant, Dr. Muib. Then we have Dr. Muib, youngest male consultant है हमारे टाइम पे। अब मैं आज चिट्ठे खोल देता हूँ, 1-2 सर बुरा नहीं मानना। Dr. Muib was the most enthusiastic, lovable and overworking all day। सारा दिन ही काम, ज़्यादा ही काम करना है। तो आज शायद इसी वजह से सर जो है आज इस लेवल पर पहुँचे हैं। And a good companion whom you can share anything। कुछ भी अपने घर की बात करनी हो, कहीं की बात करनी हो, सर से बात कर लो, सर आपको अच्छी सी राय दे देते थे। और प्रोग्रेसिव एंड यूज्ड टू बी विद डॉक्टर राशिद सर के साथ सर को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता होगा, राशिद साहब से कुछ इन्फ्यूजन होता रहता था, हमें इनसे इन्फ्यूजन मिलता रहता था इधर से। तो सर को अगर डॉक्टर राशिद के पास जाना हो तो डॉक्टर मुईद के रास्ते से जाया जाता था। दिस वाज वन चैनल जिनसे थोड़ा सा आगे घुसना हो। देन यू कैन डू ऑल द जोक्स इन द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के जोक हो कैसे भी करने हो सर से कर सकते थे आप। ही वाज द वन पर्सन जिनके साथ आप कभी भी खुश रहेंगे। और गॉसिप भी सारी, गॉसिप भी, कोई भी गॉसिप। एंड दिस event is, I think you will all agree, it is the whole team of AMU, but not we need a team leader। तो he is a true team leader जिन्होंने आज की मीट जो है वो यहाँ आई है। So I think Department of Anesthesia should be changed to Family of Anesthesia today। This name can be given Family of Anesthesia। So if I say Department of Anesthesia की जगह अगर Family of Anesthesia कहा जाए तो I think this is the best word which we can say today। I am also thankful to Dr. Sabia Kazmi who is not here with us now in the world, but she also taught us so many things। She was the youngest female consultant at that time, and we are thankful to all them। And then I did this PG, it is a moment of pride for all of us, and thanks to all from the core of my heart। Many special thanks to Professor Muid to integrate all the anesthesiologists of the department today, and what I am today is all because of you। This is what I am doing today in GMCH, all the different courses। and then एक इस शेर से मैं लास्ट कर देता हूँ, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत आते हैं, बट फिर भी हर इमारत को बुनियाद की भी ज़रूरत होती है, हर परिंदे को आसमान की भी ज़रूरत होती है। कभी भूलना नहीं कि हर इंसान को इंसान की भी ज़रूरत होती है। तो हमें टीचर्स की ज़रूरत थी, तो वही टेक देयर। थैंक यू सो मच।